Hello students, welcome to lecture number 2 of the alkyl and aryl halides. In our previous lecture, we were discussing about the method of preparation of alkyl halides by addition of hydrohalic acid to your alkenes. There we discussed about the Markovnikov rule. Now let us discuss about the mechanism of the reaction and why we get a particular product in the reaction. For example, if this is the reaction, then according to Markovnikov rule, your product will be CH3 CHCl CH3. That will be the product of the reaction. Now, how this reaction take place? We have discussed it in our previous class also, but let me repeat it again. This is an example of electrophilic addition. As I told you in the previous class also, that whenever there is addition of electrophile, the next step will always be nucleophilic. So this reaction is called electrophilic reaction, addition reaction, because it is being initiated by an electrophile. तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर एसिड मॉलिक्यूल, इन दिस केस HCl, it will undergo heterolytic cleavage to give you H plus Cl minus. हाइड्रोजन that is proton plus chloride आयन देगा. After that, because pi electron density is very loosely held with the carbon atoms, this H plus, which is an electrophile, will attack the alkene molecule to form a carbocation. Two possibilities are there. First one is when this hydrogen get attached to this carbon, that is the carbon number 1, or it is get attached to carbon number 2. अगर ये carbon number 1 के साथ attach होता है, then we get the carbocation, which is a secondary cation. It is addition to first. पहली कार्बन पे जब ऐड हुआ तो ये बना, जब दूसरी कार्बन पे ऐड होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 CH2 plus. Now out of these two carbocations, this is a secondary carbocation and this one is a primary carbocation. We have discussed about the stability of carbocation in our previous class. You are well aware of this, that out of these two carbocations, this secondary carbocation is more stable. So this will be formed in larger amount. Now that carbocation, secondary carbocation, when attacked by the chloride ion, now this is a chloride, this was the electrophile, this was the nucleophile. तो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हुई थी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं. सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है CH3 CHCl CH3, that will be the product of this reaction. Now this is the reason also why Markovnikov rule is there, which states that the negative part goes to that carbon which is having lesser number of hydrogens. तो ये क्यों जाता है वहाँ पे, इसका पता लग गया आपको, because this secondary carbocation is more stable, so it will be formed at the easiest, or you can say most rapidly. That is why you will be getting this type of product. Now in addition to this, it has been observed that in case of addition of HBr in presence of some peroxide, the addition take place as an anti-Markovnikov addition. अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr की एडिशन करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr in presence of an peroxide, it will give you an anti-Markovnikov product, CH3 CH2 Br. This will be your major product. Second product may be formed, but that product will be formed into a very less quantity. In very less quantity,
because in that case this reaction will proceed by a कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। दो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म की तरह चलती है ये, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, सॉरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तौर पे चलती है ये जो हमारा परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड आपका कोई भी परऑक्साइड होता है। अर्लियर इट वाज थॉट दैट दीज परऑक्साइड्स आर ऑर्गेनिक परऑक्साइड, बट इट इज नॉट नेसेसरी, देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक परऑक्साइड्स आल्सो विच अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और ऑन हीटिंग। तो हमारा कोई भी परऑक्साइड हो, ये हम एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले रहे हैं, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको इस रिएक्शन का। सो दिस परऑक्साइड फर्स्ट अंडरगो homolytic cleavage. This bond will break homolytically either on heating or in presence of UV light, and you will get this free radical. This free radical will be there. Now this free radical then attacks HBr, break this bond homolytically, and it give you ROH plus bromine free radical. This is the first step. This you can say this is the initiation step of this reaction. In the second step, your bromine free radical will attack the alkene. So there are two possibilities. This is your attack A and this is your attack B. ये ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा आइदर ऑन दिस और ऑन दिस। एक को मैंने ए बोला, एक को बी बोला है। जब अटैक ए होगा तो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा दिस वन, और जब हमारा अटैक बी होगा तो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा दिस वन। नाउ अगेन this is a secondary free radical, this is a primary free radical, and we know that the secondary free radicals are more stable than the primary one. तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर जो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा बना है, तो वो क्या करेगा आपका, इट विल देन रिएक्ट विद दिस ROH formed, it will take up its hydrogen CS2, CS2, Br और RO वापस बन जाएगा। These two steps, they are the chain propagating step. In the end of the reaction, you will get different free radicals left in the reaction mixture to combine together, either give back the reactants or give you the product or any other possible product which is possible. जैसे मान लीजिए ये फ्री रेडिकल बने, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हुए हैं। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट, सभी रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए, उसके बाद फ्री रेडिकल बचे रह गए, तो जितने फ्री रेडिकल आपके रिएक्शन मिक्सचर में बचे रह गए उन सब के साथ आपका कम्बिनेशन हो सकता है। ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, दे कैन गिव यू, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगी दोनों की फ्री रेडिकल की, तो यू विल गेट दैट प्रोडक्ट। ये दो फ्री रेडिकल अगर पड़े हुए हैं तो ये जुड़ जाएंगे, यू विल गेट दैट प्रोडक्ट। तो जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं बिटवीन द फ्री रेडिकल्स लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, वो सभी प्रोडक्ट बनेंगे, although they will be formed in the lesser amount because at the end of the reaction the number of free radicals will be not very large. So this is about the mechanism of peroxide. Now the question arises, why only addition of HBr take place according to this thing? This is called in fact the peroxide effect, or it is also called Kras effect. तो इसको peroxide effect कहेंगे हम या Kras effect कहेंगे. Now as I just mentioned, why this anti-Markovnikov addition take place only in case of bromine? Why not in other hydrohalic acids?
HBr के केस में ही ऐसा क्यों होता है और बाकी के केस में क्यों नहीं होता? तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो स्टेप हैं, X CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा पहला स्टेप है। एडिशन हुई CH CH2X, ये बना, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारा ये फ्री रेडिकल बना CH3 CH CH2X, ये टर्मिनेशन स्टेप है, HX और प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2X प्लस X फ्री रेडिकल। ये दो स्टेप है। अगर हम इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखें डेल्टा H दोनों के लिए फॉर डिफरेंट हाइड्रोहेलिक एसिड्स, अगर हम डिफरेंट हाइड्रोहेलिक एसिड्स की बात करें जैसे HF, तो ये मैं इसको H2 लिख रहा हूं, डेल्टा H1 और डेल्टा H2। लेट मी राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दीज। इसकी वैल्यू है -209 किलोजूल्स पर मोल ऑफ कोर्स एंड इट इज +129। अगर हम HCl लें यहाँ पे, द वैल्यू इज -101 एंड द सेकेंड वैल्यू इज +27। HBr के केस में अगर हम इसकी वैल्यू देखें, द वैल्यू इज -42 एंड -37। और HI के केस में अगर हम ये देखें, देन दिस इज +12 एंड दिस इज +104। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पीज फॉर द टू स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, HBr के केस में दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक है, whereas in case of all other hydrohalic acids, these steps, one of the step is negative exothermic, other is endothermic, exothermic endothermic, both are endothermic। तो इस वजह से this HBr, in case of HBr, the energy of the system will be lowered to a greater extent, so this favors the formation of anti-Markovnikov product. So this is the reason why only addition of your HBr take place as an anti-Markovnikov addition, or it exhibit the peroxide effect, whereas HF, HCl and HI do not exhibit the peroxide effect. I think you might have got this reason. So this is about the preparation by addition of hydrohalic acid to alkenes. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आई थिंक इट विल बी नंबर 3 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, बाई हैलाइड एक्सचेंज, बाई हैलाइड एक्सचेंज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शंस याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि नेम रिएक्शंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं 2-3 नंबर की। राइट डाउन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन करके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज इन पर्टिकुलर यूज टू प्रिपेयर योर एल्काइल आयोडाइड्स। ये एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के काम में आते हैं। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन ए पोलर सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करानी है। आपकी बुक्स में ये एसीटोन में दी हुई है, बट एसीटोन इज नॉट नेसेसरली द ओनली सॉल्वेंट इन विच दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। पोलर सॉल्वेंट में करानी है एक्सेप्ट वाटर। वाटर को यूज नहीं करना आपने, बाकी सॉल्वेंट शुड बी पोलर। वाटर को क्यों नहीं यूज करना, बिकॉज इन वाटर दिस एल्काइल क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड
because alkyl halide, that is chloride or bromide, is not soluble in water. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वाटर को नहीं छोड़ना, मतलब यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो आप कभी सोचो कि पोलर सॉल्वेंट बोला था सर ने, तो यहाँ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वाटर यूज़ नहीं कर सकते आप। और वाटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पोलर सॉल्वेंट में आपने एसीटोन लिया, यू कैन ऑल्सो टेक मिथेनॉल। मिथेनॉल इज ऑल्सो ए पोलर सॉल्वेंट, that is CH3OH. You can use methanol instead of acetone, and in that case you will get Ri plus NaCl. ये बन जाएगा आपका आयोडाइड, बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड आपका निकल जाएगा। इफ यू आर यूजिंग क्लोराइड, अगर ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो ब्रोमाइड निकल जाएगा। यहां पे अगर हम, ये मैंने जर्नल रिएक्शन लिखी, वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप। अगर आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CH3CH2Cl प्लस NaCl in presence of acetone, it will give you CH3CH2 NaI I प्लस NaCl। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, दिस रिएक्शन इज इन फैक्ट ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड आयन इज बीइंग रिप्लेस्ड विद द आयोडाइड आयन एंड बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। 11th में आपको पढ़ाया है व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, सो बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, सो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और अगर आप इनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो आयोडाइड इन पोलर सॉल्वेंट is particularly a better nucleophile than the chloride, because iodide ion being larger in size is solvated to a lesser extent. It is solvated to lesser extent in polar solvent, so it is a better nucleophile and that is the driving force for this reaction। और यही इसका कारण है कि ये रिएक्शन आपकी होती है। इसको हम हैलाइड एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं, आपने एक हैलाइड आयन को दूसरे हैलाइड आयन से क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ carboxylic acid, from silver salt of carboxylic acid. This is the fourth method of preparation, from silver salt of carboxylic acid. This reaction is in fact called Hunsdiker reaction. This reaction is called Hunsdiker reaction. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, Hunsdiker reaction बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको, एंड योर कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी द सॉल्वेंट CCl4 एंड यू हैव टू रिफ्लक्स इट। रिफ्लेक्स करने का मतलब है आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे वेरी स्लोली फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हेन यू विल गेट RBr plus CO2 plus AgBr। This AgBr being insoluble नीचे बैठ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग गैस निकल जाएगी। So in this reaction you will be getting pure alkyl bromide. For example, CH3 CH2COOAg plus Br2, अगर ये रिएक्शन कराएं हम, CCl4 reflux, you will get CH3 CH2Br plus CO2 plus you will get AgBr। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में देयर वर 3 कार्बन्स, whereas in the alkyl bromide there are only 2 carbons।
तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों रखती है ऑर्गेनिक कन्वर्जन में इंपॉर्टेंस? कि अगर मान लीजिए आपने सीरीज में डिसेंड करना हो, हायर नंबर ऑफ कार्बन से लेस नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड की तरफ जाना हो, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। सो इन डिसेंडिंग द सीरीज ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन्स यू कैन डू इट। ये जनरली एल्काइल ब्रोमाइड्स को बनाने के काम आती है, बिकॉज एल्काइल ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, बट यील्ड इज पुअर। मतलब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नो डाउट यू विल गेट द एल्काइल क्लोराइड ओवर हेयर, बट इन दैट केस the amount of the alkyl chloride formed in the reaction will be much less, बहुत कम होगा, इसलिए क्लोरीन की yield पुअर है। आयोडीन के साथ the ratio of the carboxylic acid, silver salt of the carboxylic acid and the iodine is very important। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट और आयोडीन का रेशो 1:1 लेते हैं, इफ यू टेक द रेशो 1:1, इन दैट केस यू विल गेट द रिएक्शन लाइक दिस। यू विल बी हैविंग एल्काइल आयोडाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgI इन दैट केस इफ द रेशो इज 1:1। अगर ये रेशो 2:1 है, इफ योर silver salt of carboxylic acid is 2 moles and it is allowed to react with 1 mole of iodine, and this ratio should be controlled to a great extent. The ratio should be exactly this, otherwise you may get the different products. उस केस के अंदर instead of getting the alkyl iodide you will get the ester। आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब ये एस्टर फॉर्मेशन होती है, नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन, इट इज कॉल्ड सिमोनिनी रिएक्शन। This reaction is called Simonini reaction. In some books, it is also written as Brimboom-Simonini reaction. So, Simonini reaction is the exact name of this, but Brimboom-Simonini reaction भी लिखा होता है कुछ बुक्स के अंदर। अब इसमें आयोडाइड के केस में इस रेशो में एस्टर क्यों बनता है और इनमें एल्काइल हैलाइड क्यों बनता है ब्रोमाइड और क्लोराइड में? द रीजन इज वेरी सिंपल। In case of iodides, what happens is the alkyl iodide, the bond between carbon of alkyl group and iodine, it is a weak bond. ये आपका वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही अल्काइल आयोडाइड में बनता है एंड योर सिल्वर साल्ट इज प्रेजेंट देयर इन एक्सेस, 2:1 में था, तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है एल्काइल आयोडाइड, गिविंग यू RCOOR प्लस AgI। सो रिएक्शन जो है वो इसकी प्रेजेंस में फर्दर चली जाती है टू गिव यू द एस्टर। वेयर एज इन केस ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड दिस बॉन्ड इज नॉट दैट मच वीक। ये इतने वीक नहीं होते कि ये टूट के ये इसके साथ रिएक्शन करें, इसलिए आपके आयोडाइड्स में इफ योर सिल्वर साल्ट इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन यू विल गेट द एस्टर, दैट इज 2:1 में एस्टर, अदरवाइज यू विल गेट द आयोडाइड। नाउ दिस रिएक्शन in fact proceeds by a free radical mechanism। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है ये, लेकिन इसका पहला स्टेप फ्री रेडिकल का नहीं है। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का कोई रोल नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ हुन्स-डीकर रिएक्शन, दिस पार्ट आपके बोर्ड के सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैकेनिज्म करा रहा हूं। इसका स्टेप 1 जो है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, योर कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट रिएक्ट विद हेलोजन।
that is chlorine and bromine, and what you get is RC double bond O, OX plus AgX. This is the first step, and it is not involving any free radical. The step number 2, this particular compound RC double bond O, OX, it undergo homolytic cleavage to generate free radical. मैं यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर वो दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया. Now your step number 3. In step number 3, your this compound will react or dissociate to give carbon dioxide. This your one electron will go there, and there will be formation of bond, and one over this R plus CO2 एल्काइल हैलाइड बन जाएगा. साथ में आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा फ्री रेडिकल X, जो ये एल्काइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. दिस स्टेप इज कॉल्ड इन फैक्ट योर इनिशिएशन स्टेप. ये दोनों स्टेप आपके जो हैं वो क्या है, दे विल गो इनटू द इनिशिएशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, दैट कैन बी ए प्रोपेगेशन स्टेप, दैट कैन बी कॉल्ड ए प्रोपेगेशन स्टेप. आर फ्री रेडिकल bromine, this will be the main step of this reaction. It will give you RBr plus bromine free radical. तो ये bromine free radical आपका बन जाएगा, ठीक है. और आपका टर्मिनेशन स्टेप में R plus Br free radical, it will again give you RBr. Like that this reaction will proceed. आयोडाइड के केस के अंदर, सॉरी यहाँ पे X लिखा है हमने, तो हम यहाँ X ही लेंगे, X फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे आपका जो है एल्काइल हैलाइड और X, और यहाँ पे भी आप X ले लीजिए, क्योंकि मैंने ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के लिए X एक जैसा लिखा था X मान के. सो दिस विल बी द स्टेप. सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स बाय विच दिस रिएक्शन विल प्रोसीड. सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हुंस-डिकर रिएक्शन. हुंस-डिकर रिएक्शन के बाद अगर एस्टर बनता है आयोडाइड के अंदर, इन दैट केस द स्टेप हैज ऑलरेडी बीन रिटन, उसके अंदर बॉन्ड टूटता है और सीधा आपका रिएक्शन हो जाती है. दिस इज कॉल्ड योर, यू कैन से फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके बाद जो हमने पढ़ना है इसमें, दैट इज योर फोर्थ स्टेप और फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज योर एलाइलिक, और एलाइलिक एंड कर लीजिए आप, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे मान लीजिए एल्कीन है हमारे पास, दिस इज प्रोपीन. इस पे तो हमने कर लिया HX की एडिशन से. मान लीजिए हमने हैलोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी हो एलाइलिक पोजीशन पे, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करनी हो तो आप क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 800 केल्विन्स. जब आप इसको 800 केल्विन्स पे रिएक्ट करवाएंगे, आपको पता है कि होमोलिटिक फिशन जो होती है दैट टेक प्लेस आइदर एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, 11th में पढ़ाया था, क्यों होता है ऐसा ये भी बताया था, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. तो 800 केल्विन पे जब करते हैं ये, तो हमारी क्या हो जाती है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, CS2Cl प्लस आपका HCl बन जाएगा. साथ में क्या बन जाएगा आपका HCl. दिस इज योर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो ए फ्री रेडिकल रिएक्शन. और इस रिएक्शन का इस टेम्परेचर पर प्रोसीड करने का कारण भी ये है कि जो हमारा एलाइल फ्री रेडिकल होता है, दिस इज योर एलाइल फ्री रेडिकल.
नाउ दिस एलाइल फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, CS2 CH डबल बॉन्ड CS2। सो दिस इज योर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस टेक प्लेस बिकॉज योर एलाइल रेडिकल्स आर क्वाइट स्टेबल। अगर हम बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए टॉलिन है हमारे पास, एंड वी विश टू सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन ऑफ साइड चेन this CS3 say with chlorine, then in that case the reaction will be carried out in presence of light, sunlight. You will get chlorotoluene and HCl. क्लोरोटोलिन बनेगा, साथ में आपका HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर कॉल्ड एलाइलिक, द बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हमारी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, दैट कैन आल्सो बी कैरिड आउट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड डबल बॉन्ड CH CS3। क्लोरीनेशन कर सकते हैं हम इसकी। अगर हम एलाइल ग्रुप के ऊपर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करनी हो हाइड्रोजन की, हेलोजन में कौन से हेलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कर सकते हैं SO2Cl2। Your temperature of the reaction will be 473 Kelvin, or this reaction will be carried out in presence of light and of course peroxide light or 473 Kelvin. Then you will get CS2 double bond CH CS2Cl प्लस SO2, ये बाहर निकल जाएगा, प्लस HCl, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। So you will be getting pure allyl chloride, क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट गैसियस हैं, they will leave the reaction mixture giving you the pure alkyl chloride. So this is about the allylic substitution, that is, ये क्लोरीनेशन थी। जैसे ये क्लोरीनेशन बताई, इसी तरीके से अगर हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, then you can also carry out this substitution with bromine at allyl position with the help of N-bromosuccinamide, CS2 double bond CH CS3 plus, this is your N-bromosuccinamide, this is N-bromosuccinamide। इसके साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कोर्स लाइट, सनलाइट, एंड यू विल गेट CS2 डबल बॉन्ड CH CS2Br प्लस, यहां हमारा सक्सीनामाइड बन जाएगा, H लग जाएगा यहां पे नाइट्रोजन की जगह पे, ब्रोमीन की जगह पे क्या लग गया आपका, H लग गया। सो ये दिस इज योर सक्सीनामाइड, ये आपका सक्सीनामाइड बन गया, और साथ में बन गई आपकी एलाइल ब्रोमाइड, साथ में आपका क्या बन गया, एलाइल ब्रोमाइड बन गया। तो ब्रोमिनेशन करनी है एलाइलिक पोजीशन पे, सो दिस इज आल्सो ए मेथड। एन ब्रोमोना सक्सीनामाइड को हम NBS भी लिखते हैं शॉर्ट में, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो दिस इज अबाउट द एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन in your hydrocarbons, that is alkenes. So these are the methods of preparation from your hydrocarbons. अब हमने जो तुम्हारी किताबों में सबसे पहले दिया हुआ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आई एम डिस्कसिंग इट एट द एंड, एंड दैट इज फ्रॉम alcohols. Your next method of preparation is from alcohols. From alcohols. Your alkyl halides can be prepared. So from alcohols में पहला मेथड है by action of hydrohalic acids
on alcohols by action of hydrohalic acids on alcohols. ROH, where R is the alkyl group, it is allowed to react with HX in presence of anhydrous ZnCl2. You get RX plus H2O. ये बनेगा हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। रिएक्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें, CH3 CH2OH से HCl एनहाइड्रस ZnCl2, it will give you CH3 CH2Cl प्लस H2O, ये बन जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज हाइड्रोहेलिक एसिड्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन दियर एसिडिक स्ट्रेंथ, वो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड्स in this reactions you can say in this reaction is HI is more reactive than HBr, more reactive than HCl, and this order can be explained on the basis of acidic strength, जो इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। एंड एज वी नो दैट HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द हाइड्रोहेलिक एसिड्स, so HI will be reacting the fastest, then HBr, then HCl. इसी तरीके से आपने ये ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स दैट विल बी इन द ऑर्डर टर्शरी एल्कोहल, इट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्कोहल, इट इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल। एंड व्हाई this order is there, that will be clear when we will be discussing about the mechanism of this reaction, कि ये reaction हमारी होती कैसे है। So let us discuss about the mechanism of this reaction. The first step of this mechanism is जो हमारा हाइड्रोहेलिक एसिड होता है दैट अंडरगो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, एसिड की तरह बिहेव करता है, गिव यू प्रोटॉन प्लस X माइनस। इन द नेक्स्ट स्टेप योर एल्कोहल विच इज ए लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह काम करेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो प्रोटॉन विल attack the lone pair of oxygen and we will get the protonated alcohol, हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगी प्रोटॉन के अटैक से। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों स्टेप को अगर हम एक साथ मिला के देखें तो हम ये कह सकते हैं सिंपली पहले एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ये, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो दिस प्लस HX टू गिव दिस प्लस X माइनस, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिंपली एक एसिड बेस रिएक्शन है। विच आल्सो जस्टिफाइज अवर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। इन द नेक्स्ट स्टेप योर प्रोटोनेटेड एल्कोहल इट लूजेज वाटर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। यू विल गेट ए कार्बोकैटायन प्लस वाटर, अब आपका कार्बोकैटायन प्लस वाटर बन जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप विल बी सिंपली दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हैलाइड आयन टू द कार्बोकैटायन। लास्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, R प्लस इट विल कंबाइन विद X माइनस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी दोनों की आपस में। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बोथ विल कंबाइन टू गिव यू एल्काइल हैलाइड। अब जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स मतलब हाइड्रोहेलिक एसिड था वो तो एक्सप्लेन हो गया यहाँ से इस स्टेप से। ये स्टेप जितना फास्ट होगा उतना रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगी, और क्योंकि HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है तो इन दैट केस द इक्विलिब्रियम विल बी लाइंग मोर ऑन द राइट हैंड साइड
सो रिएक्टिविटी ऑफ HI विल बी द मैक्सिमम। अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो डिपेंड करेगी आपके इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। नाउ वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इन द ऑर्डर टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, सो your order of reactivity of alcohols will be tertiary greater than secondary greater than primary. We are running short of the time today for this lecture, so I am just terminating my lecture over here. Rest of it will be discussed in the next lecture. Thank you very much.